Very good afternoon to all of you. Today we are learning another important topic, that is searching the rRNA and tRNA gene sequences in the genome. Then we will learn how to identify bacteria by 16S rRNA gene sequencing. Then we'll learn how to identify fungi by 18S rRNA gene sequencing. And then we'll learn how to identify insects by COI gene sequencing. So these are our today's topic that we are going to cover. So we'll learn one by one all these topics. We have seen that genome contains uh, genes, and that too of three types, right? So all these three types of genes can be classified for their coding, and they can code mRNA, rRNA, and tRNA, right? So we have seen that genome can code three types of genes, and those genes can code three types of RNA: mRNA, rRNA, and tRNA. So we have seen in the lecture, in some of the last lectures, that uh, mRNA coding genes, okay, can be searched out, right? mRNA coding genes can be searched out, and for that we can use one of the software. What is the name of that software? Can anybody let me know? What is the name of that by which we can find out the genes which codes mRNA through genome? What is the name of that software? Which software we have used to search genes in the genome? Sir GeneMark. Yes, it's GeneMark, correct. So we have seen that GeneMark is the software which helps us to find out the mRNA coding genes. Okay, but we have also seen that GeneMark is not been able to find out the rRNA coding, and tRNA coding genes, right? So we're not able to find out that part. So how to find out those genes, that we are going to learn today. Okay. So what is the ultimate aim? If we find through GeneMark, okay, so we'll get all the mRNA coding genes, and today we are using a RNA-mer. Okay, this is the RNA-mer. This RNA-mer software that we use, this will help us to predict the rRNA and tRNA coding genes. Okay, so this we're going to find out today. So for that we have to use one software, and that software name is RNA-mer. This is its website link. Just copy it down. I will put it here. This is the website link. Just copy it down. This is the RNA-mer website, which helps us to find out the rRNA and tRNA genes in your genome sequence. Copy it. Then. So what is our requirement first? We require the file of your genome. Okay, file of the genome. We'll be requiring the file of the genome that should be in a FASTA format. Okay, and that we need to upload it here. So I will open this website. So this is your RNMR 1.2 server, which helps us to predict 5S, 8S, 16S, 5S, 8S, 16S, 18S, 23S, and 28S ribosomal RNA in a full genome sequence. Okay.
So this is the software which will help you to find out. Okay. So what you need to do, you need to upload your data here, okay, into this part of the sequence, a part of this window, and you need to tell them what type of bacteria or archaea or eukaryotic is there. Okay. So if you have a bacterial genome, then you can upload a bacterial one, archaeal and eukaryote. Select the one which is available with you. Okay. Right now with us, we have a Bacillus subtilis genome. Okay, this is a Bacillus subtilis genome. You can download it from the online source. Okay. So I have just already downloaded it in my laptop so that I can show it to you very easily. So what is the requirement of the software? They are saying that if there is some restriction into this analysis, that minimum 1000 nucleotides to maximum 10 lakh 10 lakh sequences can be submitted. If your sequence is more than 10 lakh, then what you can do, you can break them in numbers and then you can upload onto this website. Clear? So keep in mind, maximum 10 lakhs nucleotides you can upload. So if you are having more than that genome, then you have to put them into fragments. So now I am copying some part of the Bacillus subtilis genome, which is a less than 10,000 nucleotides. Okay, something like this. Okay, copying, and now I am just putting it here. So once I upload this file here, you can see my sequence. Just go for the submit. If you want the result to be available on email, you can put your email ID also here and you can send email. But if you can wait for a minute and I think it will come. Okay. So now results are in front of us. You can see the results. So the software has searched out some of the rRNA for us, okay, which are available at the different positions onto the genome. So I will let you know where are they. So first rRNA they have searched out for 5S rRNA. The first 5S rRNA has been searched out on a plus strand. This is a plus strand. Okay, if your RNA is encoded by the negative strand, that is a minus strand, then it will give you a minus. Okay, so 5S rRNA position has been localized onto the genome. What is the position? This is the position. Okay, 1,71,199 से शुरू होता है and then it ends on 1,71,313. Okay, so this is the position of the 5s. Likewise, they have given all the positions of other 5s rRNA region, right? Then they have also searched out for the region of 23s rRNA. Okay, 23s rRNA. This is the position of it. Likewise, they have found out all the regions of 23s rRNA. Along with that, they have found out the regions of 16s rRNA. You can see here 9,819 to 11,356. Okay. So what you can do, you can calculate what is the exact length of the sequence available to us. Okay. So for example, if I can see this 23S RNA, what is the length of it? So I can very easily calculate the length of it. You need to minus that. So it's a 165535 minus 162612. So it is coming around 2923 nucleotides. So this region is encoding rRNA for by the use of 2923 nucleotides. Now I will see for the region of 16S RNA what is the length of the gene. So I can see it can be done 1733.41 minus 171506 171506. So it is coming around 1500 base pair. Keep in mind 16S rRNA gene sequence comes around 1500 base pair. ठीक है, हर एक बैक्टीरिया
का जो 16s RNA होता है वो 1500 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है. ठीक है, that this has been proved from this analysis. Okay, now we'll see another one, this one 98191. So 11,356 minus 9819, again it is coming around 1500 base pair, 1537 nucleotides. So what you can see here, that on any genome of a particular bacterium that contains more than one copy of the 16S rRNA. As you can see here, there are number of copies are there, right? There are so many copies are there, and number of copies of 23S rRNA and number of copies of 5S rRNA. Clear? So they remains in tandem, means they remains in continuous mode, very close to each other, as you can see here, and they perform the given role as 16S rRNA, 23S rRNA, and 5S rRNA. Clear? So from that what we have learned, that every genome of the bacteria must contain some 16S RNA, 23S RNA and 5S RNA that can be searched out by using this software. So if you sequence the genome, then you can use this software to find out all 16S, 23S and 5S RNA gene sequences. Similarly, you can do this for 18S RNA if you are doing the fungus and all. Okay? Or if you can search out for 5S and 8S if you are doing eukaryotic system. Clear? Now, there is another interesting thing is there that we will discuss. In the one of the lecture, madam has told us to how the softwares can be designed and all. Okay, so if you can see how the softwares can be done, we have seen there are scripts, there are programming that can be done, and from that you can find out the 16S rRNA, 18S rRNA, or you can design any particular type of the software. I will show you here one of the script given by this system. XML file. This you can see XML file. Click onto this, and they have given the XML file. Now this is very interesting. As you can see, this is the coding. Okay, this is the coding. So this coding has given you the exact output. Clear? So madam has taught us some coding part also. So now we are trying to understand here one of the coding which has been given. Okay. So what is the output coding is there that they have given. Uh, Always give the model prediction of ribosomal RNA. This is the prediction title is what is that. Okay. Predictor software. What is the predictor software? See, we have to learn what is this. How they have designed the model. So first is the prediction title. What is the title of the software or output? So they have given prediction of ribosomal RNA. You are doing ribosomal RNA prediction. Then who is the predictor? Predictor means the software. So they have given the name of the software, RNMR 1.2. This is the complete name of it. So predictor starts here, predictor stops here. And that's why they have given the boundaries. As you can see, this is the boundary. From this onward, the data starts. And here data ends. Clear? So this you can see here in the form of the output. Clear? RNMR server. So this is the one. Source version RNMR, right? 1.2 ये यहाँ पे दिया हुआ है. Clear? Everything that they have given here. So जो वहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे भी है. Then reference. So they have given this reference and then they have ended up here. So they have created a boundary, as you can see, for the reference. Started here and ends here. So where is the that output? Okay. So you can see the prediction given here. Then prediction date and prediction date ends on that, like that. Then what is the next output? First entry is of 5S rRNA. Okay, it's a molecule. That's why they have given a MOL, mol. Then for this molecule, there are some features. What is the feature? This 5S rRNA is a rRNA molecule. Okay. Then they have given the start position. What is the start position? 171191 and ends on
That is the stop position 171313. Then they have given the direction, means whether the positive strand has been encoding or negative strand has been encoding. Then what is the exact score of search they have given. Then the e value is been given. Now why e value has been given? Because this software has searched the perfect RNA based on the homology, okay, based on the match. That's why you can see the E values there. Okay, then sequence entry title is E bacillus. That's why its name. Sequence entry length. What is the exact length that you have given to the entry? So you have given 3,74,850 nucleotides. Then so you have given the first sequence like this. So this is your first sequence. Okay. So first sequence is matching with the model string. Okay. Model string means it's a string which is already available into the system. Okay. Based on that your sequence has been matched. ठीक है आपका sequence इससे match हो रहा है मैच करने को लेकर तो जब मैच हो रहा है तो मैच स्ट्रिंग में दिखाएगा ठीक है और मैच स्ट्रिंग में ये कहां से हुआ इससे मैच दिखाया देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल टी कैपिटल टी मैच हुआ इसलिए मैच स्ट्रिंग में आपको दिख रहा है मॉडल के साथ में क्वेरी स्ट्रिंग मैच हो रही है इसलिए आपको मैच स्ट्रिंग में वो दिखते जा रहा है अब देखिए यहाँ पे जी है और ऊपर में सी है इसलिए आपको यहाँ पे डैश दिया गया है राइट डैश इसलिए दिया गया क्योंकि वहां पे मैच नहीं हुआ इसलिए मैच स्ट्रिंग यानी मॉडल स्ट्रिंग और क्वेरी स्ट्रिंग यानी जो आपने इनपुट में दी उससे मैच होते जा रहा है और ये मॉडल स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये टिपिकल आरआरएनए का सीक्वेंस है ठीक है टिपिकल आरआरएनए सीक्वेंस है और ये टिपिकल आरआरएनए के बेसिस पे ही हम हमारा सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं ठीक है तो अगर कोई सीक्वेंस में ऐसा सीक्वेंस मिल रहा है तो वो ढूंढा जा रहा है और ये सीक्वेंस यहाँ पे उसको मिल गया क्वेरी स्ट्रिंग में और वो रीजन है ये वाला 171191 और एंड हुआ 17131 पे क्लियर उसी तरह आपका सेकंड एंट्री है और देखिए दोनों 5s है थोड़ा ध्यान से देखिए ये भी 5s आरआरएनए है तो इसका जो मॉडल स्ट्रिंग है ये कॉमन रहना चाहिए देखिए मॉडल स्ट्रिंग कॉमन है क्या देखिए यहाँ पे टी जी जी है यहाँ पे भी है क्या देखिए टी जी जी है बराबर है फिर सी सी ए जी डॉट जी डॉट डी डॉट यानी ये पैटर्न है ये रिपीट किया गया यानी 5s आरआरएनए को जीनोम के अंदर डिटेक्ट करना है तो ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है ये वाला ठीक है स्टैंडर्ड सीक्वेंस है और उसके बेसिस पे ढूंढा गया फिर और थोड़ा नीचे आते हैं तो जितने भी 5s आरआरएनए हो गए उसके अंदर वो मॉडल स्ट्रिंग सेम रहेगी ठीक है 5s 5 अब देखिए 23s आ गया so if you wanted to detect a 23s rRNA in your sequence तो अब उसका मॉडल स्ट्रिंग क्या है उसका मॉडल स्ट्रिंग देखिए PCAGTTA अब ये उससे मैच नहीं कर रहा है ठीक है 5s से मैच नहीं कर रहा है ये ऊपर वाला 5s है ना देखिए इससे मैच कर रहा है क्या नहीं TGG नहीं यहाँ तो TAA है क्लियर सॉरी TCA है तो ये वेरी कर रहा है यानी ये इसका स्पेसिफिक स्ट्रिंग है और इस तरह से वो मैच ढूंढा गया आपका सीक्वेंस इससे मैच कर रहा है या नहीं और इसी के बेसिस पे आपका आउटपुट मिल रहा है तो ये थोड़ा कोडिंग है अगर आप इसमें अच्छा लाइफ या अच्छा साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली ये कोडिंग सीखिए कोडिंग अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत मजा आएगा काम करने में आप एक अलग लेवल के रिसर्चर बन जाएंगे ठीक है आज हम फॉरेनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क का यूज कर रहे हैं और हो सकता है कि कल हमारे इंडिया का भी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बन सकता है ठीक है तो ये हो गया XML फिर HMM रिपोर्ट भी आती है ठीक है देखिए यहाँ पे अलाइन होके दिखाया गया है कौन सा रीजन कैसे अलाइन हुआ है तो ये यहाँ पे देखिए ये मैच है और ये मिसमैच है जितने भी डैश डैश दिख रहे हैं या प्लस प्लस दिख रहे हैं ये मिसमैच है तो उसके बेसिस पे आप रीजन ढूंढ सकते हैं कि कौन सा रीजन अच्छा मैच हो रहा है और कौन सा बुरा मैच हो रहा है तो ये एक्चुअली अलाइनमेंट है देन फास्टा फॉर्मेट हर एक सीक्वेंस
जो आरआरएनए डिटेक्ट हुआ है उसका सीक्वेंस उन्होंने यहाँ पे सबमिट करा दी है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 14,694 से लेके 14,808 तक। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये आरआरएनए का सीक्वेंस है, आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। In this way, you can find out all the 5s rRNA, 23s rRNA, 16s rRNA in the genome of the bacterium. Similarly, आप इसी तरह 18s rRNA भी ढूंढ सकते हैं अगर आप फंजाई वगैरह ले रहे हो तो, और अगर आप एनिमल यूकैरियोट्स का ले रहे हो तो 5s भी ढूंढ सकते हैं, 6s 8s भी ढूंढ सकते हैं इस तरह से। इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आ गया ना ये क्या करना है हमको? ये सॉफ्टवेयर यूज करके सारे आरआरएनए वाले जो पॉइंट्स है वो आपको ढूंढने हैं। ठीक है, हमने एमआरएनए वाले पॉइंट्स ढूंढ लिए थे, ये आरआरएनए वाले पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए। Hello, sir. हाँ, Sir, why they maintain different copy of 16, 5, 23? इवोल्यूशन में वो चेंजेस है उसके अंदर। ठीक है, इवोल्यूशन में वो चेंजेस हो गए, पहले तो सारे एक ही थे, पर 18s और आरआरएनए 16s आरआरएनए ये सीक्वेंस वेरी होते गया। ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है आरआरएनए को। हमारे बॉडी में 16s आरआरएनए नहीं मिलता। ठीक है, 23s आरआरएनए नहीं मिलता हमको, हमारे बॉडी में कुछ और मिलता है। ठीक है, तो वो वेरिएशन है उसमें थोड़ा बहुत, इसलिए। ठीक है, so we have learned this, okay, that searching of RNA and tRNA sequence in the genome is possible. Okay. Now our next topic is to understand identification of bacteria by 16s rRNA, 18s rRNA and COI gene sequencing. ये आपको थोड़ा समझ लेना है। ठीक है? So keep in mind whenever you are working in a microbiology, okay, जनरली आप बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। ठीक है, जनरली यू डू बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन। बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले है कि बायोकेमिकल टेस्टिंग्स करके भी कर सकते हैं। यू कैन डू बायोकेमिकल टेस्टिंग। ठीक है, बायोकेमिकल टेस्टिंग्स को के बेसिस पे भी आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ये 100% नहीं होता, 100% नहीं होता, ये मार्जिनल करेक्ट हो सकता है। ठीक है, मार्जिनली करेक्ट हो सकता है। फिर दूसरा एक तरीका है जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइलिंग। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? लिपिड प्रोफाइलिंग कर सकते हैं, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड प्रोफाइलिंग करके भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये दूसरी तरीका है। और तीसरा है उसका जीन टारगेट करके। तीसरा है उसका जीन टारगेट। तो एक है बायोकेमिकल टेस्टिंग्स करके जो लेबोरेटरी में आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जनरली करते हैं ना, तो सुने होंगे ये वर्ड इंडोल, इम्विक, है ना, इस तरह से जितने भी मेथड से इंडोल, इम्विक, ये सारे बायोकेमिकल टेस्टिंग्स में आते हैं। फिर पीएच का ससेप्टिबिलिटी, रेजिस्टेंस, फिर टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है ये बायोकेमिकल में आएगी और उसके बेसिस पे आप उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेंगे। तो जब ये डिटेक्ट करना रहता है तो सबसे पहले ये सारी टेस्टिंग्स आपको करनी पड़ती है, और एक बार टेस्टिंग करने के बाद में उसको एक स्टैंडर्ड के साथ मैच करना पड़ता है। ठीक है? कोई बता सकता है कि कौन सा स्टैंडर्ड होता है बायोकेमिकल का जिसके बेसिस पे बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करते हैं? किसी को आइडिया हो तो? बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बायोकेमिकल मेथड से जब हम करते हैं तो कौन सा मैनुअल यूज करते हैं? चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कौन सा मैनुअल इस्तेमाल करते हैं? आइडिया है कोई? पढ़ा तो होगा, अभी याद नहीं आ रहा। चलिए मैं बता देता हूँ, ये पढ़ा है वर्गेज मैनुअल, ये सुना है क्या आपने कभी? ये किसी ने सुना है कि नहीं सुना है आज तक? तो वर्गेज मैनुअल फॉर
डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। इसके वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है, इसके वॉल्यूम्स आते हैं। अभी कैसा है कि बैक्टीरिया को बहुत बड़े किंगडम में, बहुत बड़े ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे कुछ साइक्रोफाइल्स होते हैं, कुछ लिपोफाइल्स होते हैं, कुछ थर्मोफाइल्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब है, एरोब है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हर एक जो जेनेरा है उसका, वो बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है, और उसको बहुत डिटेल बायोकेमिकली जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके अंदर भी स्पीसीज वेरिएशन भी ऑब्जर्व हुए। तो उसके बेसिस पे भी हमने बर्गेस मैनुअल के बहुत सारे वॉल्यूम्स क्रिएट किए, ठीक है, बहुत सारे वॉल्यूम्स थे। आज की डेट में आई थिंक 12 से ज्यादा वॉल्यूम्स है उसके, ठीक है। तो 12 से ज्यादा वॉल्यूम अलग अलग टाइप के, तो दिखाना चाहूंगा अगर है तो अवेलेबल। क्लियर तो नहीं है यहाँ पे फोटो में, पर उसका क्लासिफिकेशन बेस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया नहीं है, आप भी बर्गेस मैनुअल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। कि सबसे पहली बात है, आपको 50 और मोर टेस्टिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है, अलग अलग 50 से ज्यादा बायोकेमिकल टेस्टिंग्स करनी पड़ती है, एंड देन यू विल बिकम लिटिल कंक्लूसिव, ठीक है, कि हाँ ये वही बैक्टीरिया है, क्योंकि उसका मैच करेंगे, उसका सारे टेस्टिंग्स मैच होगी तो आप बोलोगे हाँ ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसलिए ये उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुट अप नहीं करता हमारे सामने कि बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ वो करेक्ट है या नहीं। फिर दूसरा है लिपिड प्रोफाइलिंग। लिपिड प्रोफाइलिंग भी एक किट बेस्ड मेथोडोलॉजी है, ठीक है। ये भी आपको 70% अश्योर करता है कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है, 70% अश्योर करता है। सबसे अच्छा जो तरीका है वो है जीन टारगेटिंग, ठीक है, और बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। बट ये भी 100% फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। जीन टारगेटिंग जो है, अगर आप जीन टारगेटिंग कर रहे हो फॉर बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन, तो आपको कौन सा जीन टारगेट करना पड़ेगा? अभी मैंने बताया कौन सा जीन टारगेट करना पड़ेगा। बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा जीन टारगेट करना पड़ेगा? कौन सा? 16S RRNA, राइट। 16S RRNA जीन टारगेट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप 16S RRNA जीन टारगेट कर रहे हो तो आप उसके जीनस एंड स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी वो एग्जैक्टली किससे मैच कर रहा है ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर जीन लेवल पे आप जा रहे हो तो 16S RNA जीन टारगेट करना पड़ेगा। 16S RNA जीन इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाईली कंजर्व होता है जीनस वाइज, और थोड़े थोड़े वेरिएशन से वो स्पीसीज में वेरी करता है। इसलिए आप हर एक स्पीसीज का एक टिपिकल सीक्वेंस मैच करा के उसको पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा स्पीसीज वहाँ पे है। कितने लेंथ का है 16S RNA जीन, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का है? अभी मैंने बताया था कितने न्यूक्लियोटाइड्स का है। अभी हमने आरएनए मर में किया था ना प्रेडिक्शन, कितने कितने इसका है यहाँ पे बताया था ना मैंने, कितने न्यूक्लियोटाइड्स का है?
97937 माइनस 96400 कितना पहुंचा 1500 न्यूक्लियोटाइड्स कितना 1500 न्यूक्लियोटाइड्स सो 1500 न्यूक्लियोटाइड का वो जीन है ये हमको क्या करना पड़ेगा टारगेट करना पड़ेगा ठीक है तो 1500 न्यूक्लियोटाइड का जीन हम टारगेट करेंगे और उसको उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे ठीक है तो इसलिए हम 16 आरएनए करेंगे ठीक है जीन सीक्वेंसिंग फॉर बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन अब क्या होता है कि जब हम 16 आरएनए करते हैं तो ये भी 100% करेक्ट नहीं होता ठीक है 100% करेक्ट होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते ठीक है कि 100% करेक्ट होगा ये 90% करेक्ट होगा ठीक है अगर आपको अगला 10% अचीव करना है तो आपको होल जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी ठीक है जो अभी हमने बताई होल जीनोम सीक्वेंसिंग तभी आप परफेक्टली बता सकते हो कि आपका बैक्टीरिया ये जीनस और ये स्पीसीज का है कभी कभी क्या होता है कि कोई दूसरे स्पीसीज का भी आप गलती से आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये वो पर्टिकुलर स्पीसीज है और या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका बैक्टीरिया नया बैक्टीरिया होगा ठीक है आपको पता नहीं चलता है इसलिए 16 आरएनए 100% नहीं है 90% करेक्ट बोल सकते हैं अगर आपको 100% श्योर होना है कि आपका बैक्टीरिया कौन सा है तो आपने हमेशा क्या करना है जीनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग आपको उसकी करनी है तो 16 आरएनए की तरफ जाते हैं तो शुरुआत करते हैं ठीक है आप मुझे बताते जाइए कैसे कैसे शुरुआत करेंगे ठीक है मेरी क्वेरीज है सबसे पहले मुझे ये बताते जाइए आप कैसे करेंगे ठीक है मुझे क्या टारगेट करना है कौन सा रीजन टारगेट करना है कौन सा रीजन टारगेट करना है 16 RRNA. हाँ 16 आरआरएनए 16 आरआरएनए बैक्टीरिया के कहाँ प्रेजेंट है बताइए बैक्टीरिया के कौन से रीजन में प्रेजेंट है अभी पढ़ा है ना मैंने कहाँ प्रेजेंट है बैक्टीरिया में कहाँ प्रेजेंट है ये कहाँ से प्रेडिक्ट किया था क्या सीक्वेंस इनपुट में दिया था इसको क्या सीक्वेंस इनपुट में दिया है जीनोम हाँ जीनोम इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अभी इतना दिन अपन ने सीखा ना 16 आरआरएनए जीन बैक्टीरिया के कहाँ प्रेजेंट है जीनोम में प्रेजेंट है ठीक है अब मुझे बताइए कौन से टाइप का जीनोम प्लाज्मिड जीनोम या उसका साइटोप्लाज्मिक जीनोम 16 आरआरएनए प्लाज्मिड में रह सकता है क्या कि नॉर्मल उसके साइटोप्लाज्मिक जीनोम में ही रहेगा सर साइटोप्लाज्मिक जीनोम हाँ ये समझ लीजिए ठीक है क्या होता है ना कि मैं नहीं रहूंगा ना इसके बाद में मैं तो आपको और 2-4 दिन 5 दिन पढ़ाऊंगा उसके बाद तो मैं छोड़ दूंगा ना आपको आप तो अपनी जिंदगी जियोगे तो जब आप लाइफ में जाओगे तो यही क्वेश्चन आएगा कि 16 आरआरएनए जीन आपको टारगेट करना है किसी बैक्टीरिया का तो कौन सा जीनोम टारगेट करेंगे आप तो आपको बताना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्मिक जीनोम आप टारगेट करेंगे प्लाज्मिड में होता है क्या प्लाज्मिड जीनोम में होगा क्या आंसर है नो प्लाज्मिड में नहीं रहता ठीक है तो सबसे पहली बात है कि आप उसको टारगेट करने वाले हैं टारगेट बाय पीसीआर ठीक है आप टारगेट कर किससे करने वाले हो टारगेट बाय पीसीआर से करने वाले हो तो जब पीसीआर से हम टारगेट कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कौन से टाइप का पीसीआर लेंगे हम
रियल टाइम पीसीआर लेंगे, थर्मल पीसीआर लेंगे, या आरटी पीसीआर लेंगे, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर लेंगे? कौन सा लेंगे बताइए? आरटीपीसीआर। आरटी वाला कौन सा, रियल टाइम या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड। क्यों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों लेंगे? क्यों लेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बताएंगे थोड़ा सा? सर बिकॉज बिकॉज वो वो आरएनए है। आरआरएनए है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं कि उसका जो आरएनए प्रोड्यूस होगा उसको हम टारगेट करें, करेक्ट बोल रहे हैं हम? करेक्ट बोल रहे हैं ना? अरे जिन्होंने अभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोला उन्होंने क्या बोला कि आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इसलिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करें, ऐसे ही बोल रहे हैं ना? बराबर है क्या? मैं आपको घुमा भी सकता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप हाँ या ना बोलो। समझ रहे हैं क्या? आपने बोला कि आरएनए है इसलिए आरटीपीसीआर करेंगे, करेक्ट है या नहीं है? अरे डिस्कस तो करो मेरे से। हाँ, हाँ, आपने ऐसे ही बोला ना कि वो आरआरएनए है सिर्फ इसलिए हम आरटीपीसीआर लेंगे, बट अब थोड़ा आप समझो, ठीक है? हम क्या करने वाले हैं ये थोड़ा समझिए। अब मुझे ये बताइए, आरआरएनए आपके सेल में कहाँ होगा? आरआरएनए आपके सेल में कहाँ होगा? जब कोई बैक्टीरिया आरआरएनए बना लेगा तो कहाँ रहेगा वो? साइटोप्लाज्म। बराबर। साइटोप्लाज्म में कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में किसके साथ रहेगा? किसके साथ रहेगा बताइए? अरे आरआरएनए कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है? प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा ना हमने, कहाँ प्रेजेंट रहता है? हुँ? ईआर। नहीं, आरआरएनए एग्जैक्टली किसके साथ काम करता है, कहाँ काम करता है? नाम ही तो है उसका, उसका नाम पूरा। राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम। समझे क्या? वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम के ऊपर, ठीक है? समझ रहे? और हम क्या बोल रहे हैं कि हमको 16S आरआरएनए जीन सीक्वेंसिंग करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? कौन सी सीक्वेंसिंग करनी है? जीन सीक्वेंसिंग। और हम कहाँ देख रहे हैं? आरएनए। तो हमको किसको टारगेट करना है? किसको टारगेट करना है? समझ रहे हैं क्या पॉइंट? टारगेट किसको करना है? जीन। जीन को टारगेट करना है आपको, आरआरएनए को टारगेट नहीं करना है। 16S आरआरएनए बनाने वाले जीन को टारगेट करना है, ठीक है? समझा क्या? इसलिए आप कौन सा पीसीआर लेंगे बताइए अब? रियल टाइम। हाँ, आप रियल टाइम भी ले सकते हैं, ठीक है? और आप नॉर्मल थर्मल भी ले सकते हैं, ठीक है? दोनों ले सकते हैं, पर आप आरटीपीसीआर ले सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, इसीलिए मैं आपको ट्विस्ट किया था यहाँ पे। ये समझ सी क्या होता है ना कि थेरोटिकली हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर अब थेरोटिकली पढ़ते पढ़ते भी ना अपना एक कंक्लूजन ड्रॉप करते जाइए, ठीक है? कि वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने अब रियल टाइम या थर्मल पीसीआर लेना है। चलिए, तो अब पीसीआर में
सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी टेम्पलेट की, ठीक है। तो हमारे अंदर, हमारे पीसीआर के अंदर टेम्पलेट क्या होने वाला है बताइए। टेम्पलेट यानी क्या, कोई बताएगा टेम्पलेट यानी क्या? पीसीआर के अंदर टेम्पलेट यानी क्या होता है, क्या क्या बोलते हैं हम टेम्पलेट को? या 16s आने के लिए कौन सा टेम्पलेट लगेगा? प्राइमर सर, नहीं, टेम्पलेट। कॉम्प्लीमेंट, हाँ, genome, यस करेक्ट, जीनोम। जिस जीनोम राइट, बराबर है। जीनोम, जीनोम क्या है? जीनोम क्या है? template, टेम्पलेट। जीनोम हमेशा टेम्पलेट रहेगा, यानी अगर जीनोम टेम्पलेट है तो जीन हमारा क्या हो गया फिर? जीनोम के अंदर कौन है? तो जीन क्या हो गया हमारा, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टारगेट। याद रखिए ये सारे वर्ड्स, क्योंकि क्या होता है ना, जब बड़े बड़े डिस्कशंस होते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस में, प्रेजेंटेशंस में या मीटिंग्स में, तो आपको वो सिखाते नहीं बैठेंगे, वो आपको यही वर्ड बोलते जाएंगे, ठीक है। पीसीआर का टेम्पलेट क्या लेंगे आप, तो वो बोलते रहेंगे व्हाट इज द पीसीआर टेम्पलेट। देन अगला वाला बोलेगा सर देयर विल बी अ जीनोमिक रीजन दैट वी कैन टारगेट, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो व्हाट यू आर टारगेटिंग, सो दे विल से ओके 16 आरएनए जीन वी आर टारगेटिंग। सो ऐसे ये वर्ड्स आपको पता रहने चाहिए कि टेम्पलेट किसको बोल रहे हैं, टारगेट किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तभी आप मीटिंग में बैठकर अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ समझेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब अगला जो चीज लग रहा है वो क्या लग रहा है आपको? प्राइमर। प्राइमर, ठीक है। अब प्राइमर लगने वाला है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ना यूनिवर्सल प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल प्राइमर्स। आपके पास क्या होते हैं, कौन से टाइप के प्राइमर्स होते हैं? फॉरवर्ड यूनिवर्स, प्राइमर एंड रिवर्स। हाँ फॉरवर्ड करेक्ट है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स होते हैं। ये यूनिवर्सल प्राइमर्स है फॉर 16s आरआरएनए, कुछ रेडीली अवेलेबल है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, वो आप सीक्वेंस लेके भी टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आप चाहो तो आपके खुद के प्राइमर डिजाइन भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डिजाइन योर ओन प्राइमर। तो प्राइमर आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अब समझ लीजिए कि आपको किसी ने क्वेश्चन दिया, उसने कुछ ऐसा लिखा, आई हैव माई Bacillus subtilis bacteria and I sequence the genome of the same, ठीक है। इसका मीनिंग समझाएगा कोई मुझे, क्या लिखा है? I have my Bacillus subtilis bacteria and I sequence the genome of the same, इसका क्या मीनिंग? इसका क्या मीनिंग? उनके पास वो बैक्टीरिया है एंड उन्होंने उसका पूरा जीनोम एक्सट्रैक्ट करके उसका सीक्वेंस किया हुआ है। करेक्ट, इतना समझ गया आपको? नेक्स्ट,
यहाँ से पढ़ेंगे, कोई एक पढ़िए, कोई एक पढ़िए। I want to target the 16S rRNA gene of the same by unique primers for the same. Could you find the primers for me for this bacterium which can amplify the 16S rRNA region? हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या बोला उसने? उन्हें इसी बैक्टीरियम का हम्म 16S rRNA एम्पलीफाई करना है। हम्म सो दे आर आस्किंग अस टू प्रिपेयर द प्राइमर्स जो सिर्फ और सिर्फ 16S rRNA को एम्पलीफाई कर सके। बराबर समझा आपको? तो अगले वाले ने आपको बोला कि 16 आरएनए का रीजन एम्पलीफाई करने के लिए एक यूनिक प्राइमर बनाइए। ठीक है, वो यूनिवर्सल प्राइमर नहीं लेना चाहता। ठीक है, और उसने आपको ये सीक्वेंस उठा के दे दिया है। ठीक है, समझ रहे? अब आप बताइए, अब आप सब लोग मिलके मुझे बताइए क्या करूं मैं? आप बताते जाएंगे, मैं करते जाऊंगा। क्या स्टेप्स लूं? जिसको जिसको जो जो आइडिया आती है बताइए। हमको आखिरी में प्राइमर बना के दिखाना है। पहले तो पता करना पड़ेगा कि कौन सा जीन है जो 16S rRNA बना रहा है। हाँ, कैसे पता करेंगे फिर? अभी तो मैंने कुछ सिखाया आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ तो सिखाया। सर बाय आरएनए एम्पर। हाँ, आरएनए आरएनए मर से कर सकते ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। क्या करूं फिर बताइए? आप बताते जाइए। ये सीक्वेंस के साथ कैसे पता करना है मुझे कि कहाँ 16 आरआरएनए जीन है? सर पहले ये सीक्वेंस आरएनएमआर में सबमिट करना होगा। बराबर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, फिर कहाँ लेके जाऊँ? आरएनएमआर में। यस सर। ओके, आरएनएमआर में यहाँ लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, मान के चलिए यहाँ पे पुट कर दिया, फिर सबमिट कर दिया। बराबर, सबमिट यस हो सर। जाने के बाद मुझे आउटपुट आएगा। ये आ गया आउटपुट। अब क्या करूँ? अभी वो रीजन ढूंढना है सर जहाँ पे 16S आरआरएनए स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे है? सर 171506 से स्टार्ट हो पर वहां तो रहा एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है ना? समझ रहे हैं? है सर। तो कौन सा भी ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिए। समझा क्या? आप कौन सा भी 16 आरएनए ले सकते हैं। तो आपने कौन सा लिया? आपको कौन सा लगता है आप ले रहे हो? कौन सा ले रहे हैं? 1715 वाला लेना चाहते हो? हाँ सर। चलिए ठीक है, यस सर। चलिए 171506 से 173041 तक का सीक्वेंस हमको लेना है। आप मुझे ये सीक्वेंस निकाल के दिखाइए। कहाँ से निकालूं मैं? बराबर 171506 से शुरू होगा, 173041 पे खत्म होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं? सर बायो एडिट। करेक्ट। क्या करना पड़ेगा? इस सीक्वेंस को वहां ओपन करना पड़ेगा ना? यस सर। चलिए,
अब क्या करूं? अब क्या करना चाहिए? वो 17 ढूंढना पड़ेगा स्क्रॉल करके। चलिए ठीक है। वन सेवन 1715060 है ना, 1715060 पीछे जाएगा। वन सेवन वन 506 है ना, बराबर है क्या? 1715006 ज्यादा इधर हो गया। आगे कहाँ है 1715006 बताएंगे? 1715006 कहाँ है? तो वो 171,500 ये आगे, के हाँ ये आगे है हाँ क्या? हाँ यहाँ पे है ना, हाँ। यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं। आप ही बोलिए क्या करूँ, कहाँ तक जाना है? वो पहले मार्क करना होगा ना वहाँ पे। आप बताइए, मुझे नहीं पता। सर वो जो फ्लैग है वो एक फ्लैग लगा दिया, ठीक है। हाँ, फिर अब सर जो एंड रीजन है वहां तक जाना है। पक्का सोच के चलिए, 173 तक जाना है हमको, 173 ठीक है। 171 173,041 है ना, 173,741 है, 173 आगे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे। यस सर। कहाँ तक लेना है? वो 17304 के टी वाला। ये वाला टी, हाँ। कॉपी करूँ? इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप इसमें जब तक एक चेंज नहीं करते आप इसमें कॉपी नहीं कर सकते, वो तो बताया नहीं आपने।
कॉपी नहीं होता, देखिए एडिट सेक्शन में आ रहा है क्या, कॉपी हो रहा है, एडिट सेक्शन में जाना पड़ता है ना, ठीक है। पर ये एडिट सेक्शन करने की जरूरत है क्या, हमको क्या करना है, सिर्फ एडिट करना है या कॉपी करना है सिर्फ, सर सिर्फ कॉपी करना है। तो Copy. एडिट की जरूरत है, एडिट की जरूरत है या नहीं है, अभी किया ना मैंने, कॉपी करके दिखाया ना, ये देखो कॉपी हो गया नहीं, चलिए कॉपी करते हैं। अभी कितना हो गया, 171506 तक जाना है, ठीक है। 171506 171506 ये आ गया, दिख रहा है। ठीक है, आ गया, करेक्ट है। नो सर। क्यों, 173041 तक लेना था ना, तो टू तक है सिलेक्ट। वो तो हटा सकते हैं ना, हाँ ठीक है। कंट्रोल सी, एक हटा देते हैं आखिरी बार, आ गया, आ गया ना, पक्का है। इसका आइडेंटिफायर का नाम क्या देंगे, इसको फास्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, फास्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे सिंबल देते हैं, सर ग्रेटर देन सिंबल। हाँ ग्रेटर देन साइन फॉलोड बाय नाम लिखना पड़ेगा, राइट। रीजन कौन सा है, 16 SR है। डैश, सीक्वेंस की लेंथ लिखनी पड़ेगी, कहां से कहां तक है, क्या लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस कौन सा पोजीशन बतानी पड़ेगी ना,
क्या पोजीशन है? 171,506 से लेके कहाँ? 173 1 041 है ना, यही है ना हमारा रीजन। अब मुझे ये बताइए, हमने तो 16 आरआरएनए ढूंढ लिया ऐसा दावा कर रहे हैं, पर ये सही में 16 आरआरएनए ये कैसे कंफर्म करेंगे? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये सीक्वेंस 16 आरआरएनए क्या कर कैसे पता करें? सिंपल है रे, अभी इतना तो सीखा हमने बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सर मैच द सीक्वेंस। हाँ, मैच द सीक्वेंस। कहाँ कहाँ मैच करना पड़ेगा? कहाँ पुट करूं? कहाँ पुट करूं? कहाँ? लास्ट। हाँ, ब्लास्ट ब्लैक ब्लास्ट करना पड़ेगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी आपका ब्रेन तो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, इतने दिन से तो हम सीख रहे हैं। ब्लास्ट, कौन सा ब्लास्ट करूं? ब्लास्ट एन गुड। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना फास्ट होना चाहिए इंसान, तो मजा आता है काम करने में। ब्लास्ट है। कोई जीनोम सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? कोई जीनोम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए नहीं नो करते। सर। ठीक है, शो रिजल्ट इन न्यू विंडो एल्गोरिथम 10 पे कर लेते हैं, ब्लास्ट करते हैं। यानी आरएनए मर ने हमको सही 16S आरएनए दिया है या नहीं है, ये तो सबसे पहले कंफर्म कर लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप प्राइमर उसका डिजाइन कर सकते हैं। ये मालूम है, ये जो भी मैंने आपको सीखा, इसके पैसे लेते लोग, हजारों लाखों रुपए लेते समझने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कैसे करते हैं। आया क्या? मैच तो मिला आपको, पर कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ से। कैसे बताएंगे कि क्या है? 16S आरआरएनए है, कैसे पता चलेगा? मैच मिला सिर्फ, उसने यहाँ तो कुछ और ही लिख दिया, क्रोमोसोम कंप्लीट जीनोम। इसका क्या मीनिंग? क्या करेंगे? यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था एक चीज, याद है? क्या बताया था? आरआरएनए, ये भूल गए? अगर मैं स्पेसिफिक जाता हूँ तो मुझे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर ये सही में 16S आरआरएनए है तो वो उससे मैच कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। चलिए देखते हैं आया है क्या। आ गया क्या? करेक्ट है? यस सर बिल्कुल सही है। और रिजल्ट देखिए ना, कितना परसेंट मैच है? 100% 9 9.55% है, 100% मैच है। करेक्ट है, यानी हमारे जो सॉफ्टवेयर है आरएनए ने बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस हमको दिया। करेक्ट है। अब मुझे इससे क्या बनाना है? इसी सीक्वेंस से प्राइमर। प्राइमर। अब मैं क्या, कहाँ जाऊँ? सीक्वेंस सही है, 16 आरएनए का ही सीक्वेंस है, ये मुझे कंफर्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं अभी? अभी मुझे क्या बनाना है? सर प्राइमर ब्लास्ट।
प्राइमर बनाना है। हाँ, प्राइमर ब्लास्ट करना पड़ेगा, प्राइमर्स बनाने हैं ना हमको। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओ, यहाँ करेक्ट है। सीक्वेंस बेस्ड, बाकी को कुछ हाथ नहीं लगाता, जैसा वैसे रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऑर्गेनिज्म हटा देते हैं। आ गया, प्राइमर्स आ गए हमारे पास। कौन सा लेंगे अब, कौन सा लेंगे, देखिए यहाँ पे अलग अलग प्राइमर्स आ गए। ये पहला प्राइमर सेट है, ये पहला प्राइमर सेट है जिसका एम्प्लीकॉन कितना बेस पेयर का बताएंगे। एम्प्लीकॉन मैं वर्ड पुट कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता पा रहा कि बताऊंगा कि एम्प्लीकॉन है नहीं क्या। कितने न्यूक्लियोटाइड का एम्प्लीकॉन मिल रहा है आपको इस पहले प्राइमर पेयर से, कोई मुझे बताएगा एम्प्लीकॉन कितना। हाँ बोलिए। 146. 146. यस करेक्ट, प्रोडक्ट लेंथ है ना एम्प्लीकॉन 146। आपको तो जीन जितना बड़ा एम्पलीफाई होगा, जितना अच्छा सीक्वेंस मिलेगा, उतना अच्छा आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे ना। तो कौन सा लेंगे, ये 146 वाला लेंगे या 995 वाला लेंगे। 995। 995. 995 ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, अगर मेरा एम्प्लीकॉन 995 न्यूक्लियोटाइड्स का है, मेरा 16s आरएनए जीन कितने न्यूक्लियोटाइड का है, 1500. 1500 न्यूक्लियोटाइड्स का है। तो मैं पूरा 16s आरआरएनए जीन एम्पलीफाई कर पाया हूं या नहीं, अगर मैं ये प्राइमर यूज करता हूं तो। कोई मुझे आंसर देगा, मेरा नेचुरल जीनोम के अंदर जो जीन है 16s आरआरएनए कितने न्यूक्लियोटाइड का है, 1500। और अगर मैं ये प्राइमर लगाता हूं तो मुझे कितने का एम्प्लीकॉन मिल रहा है, 995 का। तो मैंने पूरा जीन टारगेट किया है या नहीं किया है, बताएगा कोई। No, sir. नहीं, हाँ करेक्ट है ना, आपने सिर्फ 995 ही टारगेट किया, यानी अब कितना बच गया, कितने न्यूक्लियोटाइड स्टडी में नहीं आएंगे,
कितने बच गए? Near about 400. 505. हाँ, ये नियरली 505 करेक्ट है। 505 न्यूक्लियोटाइड का एनालिसिस आप नहीं कर पाए, इसलिए इसको कहा जाएगा पार्शियल एम्प्लीफिकेशन। समझे क्या? इसको बोलते हैं पार्शियल एम्प्लीफिकेशन। तो अब थोड़ा समझने लायक बात है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे पूरा 1500 न्यूक्लियोटाइड का यानी 1500 न्यूक्लियोटाइड ऑफ 16s आरआरएनए ऑफ बैसिलस सबटिलिस चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक कंडीशन पुट कर दी, ठीक है। आई वांट कंप्लीट जीन सीक्वेंस ऑफ बैसिलस सबटिलिस। तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपने जो अभी प्राइमर ब्लास्ट किया है वो एक्चुअली विद इन अ जीन बाइंड कर रहा है, आउटसाइड ऑफ द जीन बाइंड कर रहा है, कोई मुझे बताएगा? विद इन अ जीन बाइंड हो रहा है या आउटसाइड ऑफ द जीन बाइंड हो रहा है? सिक्सटीनेस आरआरएनए के विद इन अ जीन बाइंड हो रहा है या आउटसाइड ऑफ द जीन बाइंड हो रहा है? Outside. नहीं, आपने पूरा 1500 न्यूक्लियोटाइड किसका दिया है इनपुट में? 16s RNA का। बराबर है। और आपका आपका मान के चलते ये जो फॉरवर्ड प्राइमर है वो कहाँ बाइंड हो रहा है? 502 8. Okay. बराबर है। और फिर सेकंड जो With रिवर्स है वो कहाँ बाइंड हो रहा है? 1522. 1522। तो 16s आरआरएनए का जो सीक्वेंस है वो एक से शुरू होके पूरा 1537 तक जा रहा है, करेक्ट है ना? हाँ. तो आपके प्राइमर कहाँ बाइंड हो रहे हैं? विद इन। Within. आउटसाइड है क्या? No. नहीं है। अब अगले वाले ने क्या बोला, ये थोड़ा समझने लायक है। उसने क्या बोला, क्या चाहिए उसको? Complete gene sequence. ऑफ 16s आरआरएनए। और हम उसको क्या उठा के दे रहे हैं? कौन सा रीजन उठा के दे रहे हैं? सिर्फ 528 से लेके कहां तक का? 1522. बराबर है। तो बाकी के 500 तो उसको मिले ही नहीं। जब उसको बाद में पता चलेगा तो आपको बहुत कंप्लेंट करेगा ना आपके बारे में। अरे मैंने आपको बोला था कि आप मुझे पूरा जीन सीक्वेंस दीजिए, आपने मुझे पार्शियल दे दिया। मुझे पार्शियल नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था? मुझे क्या? Complete. कंप्लीट। Complete genes. तो आपका जो मेथोडोलॉजी है वो गलत हो गया ना, करेक्ट है या नहीं? हाँ. तो आप अब मुझे बताइए कि आपको अगर कंप्लीट 16s आरआरएनए जीन एम्पलीफाई करना है तो आप प्राइमर कैसे बनाएंगे? ये इसका आंसर आप मुझे दीजिए सोच के थोड़ा सा। बोलिए, कोई बता सकता है? हाउ यू विल फाइंड इट आउट? आपके सामने है, थोड़ा सा हिंट मैंने हिंट देके रखा है, देखिए।
दूसरा आरआरएनए चूज करेंगे। दूसरा आरआरएनए चूज करेंगे यानी ये वाला नहीं ना, दूसरा आरआरएनए चूज करके क्या होगा आपके पीछे बताइए, लॉजिक क्या है, आप क्या बोल रहे हैं, सोचना पड़ेगा ना। दूसरा आरआरएनए चूज क्यों करेंगे? देखिए इसका आंसर बड़ा आसान है अगर आप लॉजिकली सोचे तो, ठीक है। सर प्राइमर की कॉपी नहीं बना सकते? प्राइमर की कॉपी, पर प्राइमर की कॉपी बना के भी तो अंदर ही बाइंड करेगा ना। सी लॉजिक क्या है, उसने क्या बोला कि आपको 16s आरआरएनए का कंप्लीट रीजन एम्पलीफाई करना है। तो कोई भी पीसीआर को अगर आपको कंप्लीट रीजन एम्पलीफाई करना है तो वो रीजन जो पूरा कंप्लीट चाहिए वहां प्राइमर बाइंड नहीं करवाना पड़ेगा आपको। करेक्ट है या नहीं? नहीं समझा? नो सर। देखिए आपका 16s आरआरएनए कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है बताइए, कहां से शुरू होता है? सर 171506 से शुरू होता है हाँ, और 173041 पे खत्म होता है, स्टॉप होता है। बराबर है। ये यस सर। पूरा रीजन आपको चाहिए, उसका कहना क्या, उसका क्या कहना है? आई वांट कंप्लीट जीन सीक्वेंस। यानी उसको ये पूरा चाहिए। अब जब ये पूरा ही चाहिए तो हम यहाँ पे कहीं पे भी फॉरवर्ड या रिवर्स प्राइमर बाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताइए पहले। कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर वो वहां अंदर बाइंड होगा तो वो छोड़ देगा ना कोई रीजन। तो अब मैं क्या करूंगा, ये 171506 है ना, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जो 5 है ना, 171506, इसके जगह में अगर 306 से सीक्वेंस लूं तो क्या होगा? सर फॉरवर्ड प्राइमर बाइंडिंग करेंगे। नहीं, क्या होगा ये बताइए पहले। तो वो स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट होगा तो वो पूरा कंप्लीट। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपका 16s कहां से शुरू हो रहा है? सर इट विल बाइंड फ्रॉम 506 then। नहीं, वो छोड़ दीजिए, अभी उतना मत जाइए। अभी मेरा ये कहना है कि मैं 171506 से मेरा 16s आरएनए शुरू होता है। मैंने कहां से सीक्वेंस लिया? 306। 30। तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो गया? 2। हाँ, दो कैसे? 200। 200, ओ करेक्ट, 200। हाँ 200। सॉरी, हाँ 200। 200 न्यूक्लियोटाइड में आगे चला गया, कहां चला गया? 16s आरएनए से 200 न्यूक्लियोटाइड कहां चला गया मैं? आगे। आगे चला आगे। गया। उसी तरह ये जो है 1730, ये जीरो की जगह मैं क्या पकड़ूंगा अब बताइए? 2। 2। हाँ, 2, 173241। अच्छे से समझा आपको? यस सर। तो मुझे ऐसा सीक्वेंस लेना पड़ेगा जिसका सीक्वेंस नंबर क्या रहेगा, 171306 से लेके 173241 तक जाऊंगा। यानी टोटल लेंथ जो होगी वो हो जाएगी कितने न्यूक्लियोटाइड्स की बताइए? 1900। 1900। करेक्ट, 1900। यानी अगर मैं 1900 के आसपास का पीसीआर टारगेट करता हूं तो मुझे ये कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगा। और एक चीज, अब मैं प्राइमर कहां टारगेट करूंगा? ये इसके इधर, समझ रहे हैं ना?
यानी outside. हाँ 306 से लेके 3505 तक का कोई भी रीजन में टारगेट करूंगा, उसके बाद में इधर कहां पे करूंगा, आफ्टर 241 242 के बाद, हाँ 241 के बाद, यानी 242 से लेके मैं आगे कहीं भी टारगेट कर सकता हूँ। समझा क्या आपको? तो वहाँ 2 क्यों लिया? 2 इसलिए लेना है क्योंकि वो उल्टा आएगा ना, नहीं समझा? ओके, वो उल्टा आएगा, समझ उधर से इधर आएगा और ये उधर से उधर जाएगा, करेक्ट? यानी एक प्लस ट्रेंड पे अटैक करेगा, एक माइनस ट्रेंड पे अटैक करेगा। समझ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ, तो अब मुझे जो सीक्वेंस लेना पड़ेगा वो 171306 से लेके कौन सा लेना है, 241. 173 241 हाँ, चलिए लेते हैं अभी अपन। ठीक है, तो अब इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा, 173241 तक जाना है ना। ये आ गया 17324, ये आ गया 173241। ये 242 है, बाद में हटा दूंगा मैं इसको। ठीक है, और कहां तक जाना है, 171306, 171306, 171310, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, शिफ्ट करेक्ट, इसको कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया मैंने इसको। कॉपी कर लिया, आखिरी वाला हटा देना है। आ गया मेरे पास में रीजन, करेक्ट है, सब बराबर है। यहां से शुरू हो रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं ग्रेटर देन साइन 200 प्लस, ठीक है, 16s आर आर एन ए, करेक्ट है ना, 200 प्लस 16s आर आर एन ए। चलिए अब इसको, अब एक काम करिए, अब मुझे ये बताइए 171306, इसको पहले सेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसको पहले सेव कर लेते हैं। चलो नहीं सेव किया तो भी चलता है। ठीक है, आ गया। टोटल सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई, कोई बता पाएगा? टोटल सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई, बता पाएगा कोई? कैलकुलेट करेंगे? 1900 न्यूक्लियोटाइड। नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे कौन सा लिया था हमने, सॉरी ये लिया था ना 1713 वाला। यस सर। तो सबसे पहले क्या करिए, 173241 बराबर 173241 माइनस कितना करना है, कितना करना है बताइए? 171. 171 1935 कितना आ गया, 1935 अच्छा 1935 आ गया, करेक्ट है, क्योंकि क्या था ना उसमें 1535 कुछ तो भी थे, ठीक है, 1535, तो अब आपके पास में 1935 आ गए। चलिए 1935, तो इसमें पहले 200 और आखिरी के 200 कंसिडर करने हैं, तो वो कौन से रहेंगे बताइए?
पहले 200 तो 1 to 200 हो गया, राइट? पीछे वाले 200 कौन से रहेंगे बताएंगे? 1735 से लेके कितना आ गया? 1935। समझा क्या आपको? समझा कि नहीं समझा? स्टार्टिंग के 200 यानी 1, ये देखिए अब यहाँ पे बता सकता हूं मैं। देखिए यहाँ बता सकता हूँ ना, फॉरवर्ड प्राइमर कहाँ पे बनाएंगे बोल रहा हूँ उसको, कहाँ बताना पड़ेगा बताइए? 200 हाँ 200। और रिवर्स 1935 1935 से 1735। करेक्ट है? चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है? गलत होगा तो रिवर्स आएंगे अपन। गलत हो गया। Specified primer is not consistent with the specified PCR product size from 1 to forward to 200. Minimum 700, maximum 1000. PCR product range minimum 72, maximum 1000. बढ़ रहा होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये 1000 बोल रहे हैं ना अपन, इसको 1000 से बढ़ाना पड़ेगा। ये आउटपुट 1000 से ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? हाँ सर। हाँ तो इसको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट समझ रहे? मैंने 2000 तक रेंज दे दी उसको। इसलिए रिसर्चर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? और एक एक चीज के लिए वैलिडेशंस लगते हैं यहाँ पे, ठीक है? जब तक हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते रिसर्च में। बहुत स्पेसिफिक होता है जब आप ऐसे पीसीआर बेस्ड स्टडीज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? इवन एक 16s आरएनए जीन सीक्वेंसिंग भी अगर आपको कुछ नोवल तरीके से करनी है तो आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। आ गई? आ गया ना? क्या मिला? क्या मिला हमको बताइए? कितने लेंथ का प्रोडक्ट मिल रहा है एम्प्लीफॉन? 1767। 176। तो इसमें हमारा 16s आरएनए कवर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये प्राइमर सही है? हाँ सर। अब मुझे ये बताइए कंफर्म कैसे करेंगे कि ये बराबर उसी को जाके बाइंड होगा? ये प्राइमर बिल्कुल वही जाके बाइंड होगा, ये कैसे पता करेंगे? कोई मुझे आइडिया देगा? बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाए ना उसमें तो आराम से बता सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली सब होमोलॉजी मैचिंग ही है ना। मुझे किससे का मैच करना पड़ेगा? किससे मैच करना पड़ेगा? जो
सीक्वेंस है। हाँ, जो सीक्वेंस है उससे मैच करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? तो ये सीक्वेंस है मेरे पास में अभी। तो सबसे पहले मैं इस सीक्वेंस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कौन सा ब्लास्ट करूँ बताइए? कौन सा ब्लास्ट करूँ? न्यूक्लियोटाइड अलाइन टू और करेक्ट करेक्ट, अलाइन टू और मोर सीक्वेंस, वेरी गुड। सबसे पहले यहाँ पुट कर देता हूँ ये सीक्वेंस, ठीक है? और फिर मुझे पुट करना पड़ेगा ये मेरा प्राइमर ब्लास्ट वाला सीक्वेंस। कहाँ चला गया? ये वाला, ठीक है? साइन एफ डाउनलोड पेस्ट, ठीक है? लास्ट इट। मैच नहीं मिला उसको। अच्छा, ये सीक्वेंस लेना पड़ेगा। पहले अगर हाईली सिमिलर नहीं मिल रहा तो समवॉट करके देखिए पहले, ठीक है? लास्ट इट। नो सिग्निफिकेंट सिमिलरिटी फाउंड बोल रहा है, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ होगा बताएंगे कोई? सर जीनोम की लेंथ छोटी है इसलिए। नहीं, हमने सीक्वेंस तो वही लिया है। हमने कौन सा लिया था? ये वाला लिया है ना, फर्स्ट वाला जीटीटी वाला, एजीए सीजी वाला लिया है। ये वाला एजीजी सीजीए, ठीक है? ये कौन से स्ट्रैंड को बाइंड कर रहा है? प्लस समझा क्या आपको? समझा क्या किसी को? किसी को समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? अब आप एक काम करिए, माइनस स्टैंड करके देखिए। ये वाला स्टैंड है ना, इसका मैच करके देखिए। नो सिग्निफिकेंट सिमिलरिटी फाउंड बोल रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। क्यों मैच नहीं मिल रहा, कोई मुझे बताएगा क्या? अभी भी आप समझे नहीं। अगर अगर कोई सही में इंटेलिजेंट होगा ना तो इसका आंसर देगा। क्यों मैच नहीं मिल रहा? सीक्वेंस का लेंथ छोटा है, ये करेक्ट है। उसको थोड़ा इलेबोरेट करोगे क्या कोई? कौन सा पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा हमको? सर 16 आरएनए वाला पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने जो यहाँ पुट किया है इसके अंदर तो पूरा रीजन होना चाहिए ना, या नहीं होना चाहिए? जो प्राइमर हमारे बने हैं वो तो 200 न्यूक्लियोटाइड आगे और 200 न्यूक्लियोटाइड पीछे वाले हैं, तो उसमें तो ये सीक्वेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? यस सर। तो यहाँ मैच क्यों नहीं मिल रहा? ठीक है, एक काम करिए, इसको फिर से एक बार एनालिसिस करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस ये वाला आरएनए डाल के, ये सीक्वेंस हमने उसमें डाला है ना,
आ गया क्या? आया ना? मिला कि नहीं मिला? अरे मिला या नहीं मिला? मिला सर। कौन से रीजन को बाइंड हो रहा है? आपके बैसिलस सबटिलिस के कौन से रीजन से बाइंड हो रहा है? 173218। हाँ, एक मिनट, 1 लिख लेता हूँ, 17321 से कहाँ तक बाइंड हो रहा है? 173237 तक। समझ रहे हैं कि क्या है ये? समझ रहे हैं? 173241 से कौन शुरू हो रहा है? वन सेवन 3241 से कौन शुरू हो रहा है? सर बैकवर्ड प्राइमर। हाँ, बैकवर्ड प्राइमर। इसके दूर, हाँ नहीं, यहाँ तो 60 है ना, 3241 है ना। समझ रहे हैं? अभी आपका प्राइमर कहाँ बाइंड हो रहा है? कहाँ बाइंड हो रहा है? आउटर 218। आउटर आउटर, समझ रहे हैं ना? आउटर में बाइंड हो रहा है ना। हाँ, और अब ये वाला जो है, ये 300 से 500 के बीच में बाइंड होना चाहिए अपना। कौन? फॉरवर्ड वाला। करेक्ट है या नहीं? yes sir. चलिए देखते हैं। देखिए अभी ये हटाना पड़ेगा, इसके जगह वो वाला लाना पड़ेगा। ये वाला करेक्ट है? ये वाला लिया था कि हमने? एक बार चेक कर लेते हैं। ए वाला है ना? ए वाला है, ये नीचे वाला लेना पड़ेगा। इसको हटा दो। लास्ट। अच्छा, ये वही था 1732 वाला। हमको ऊपर वाला लेना पड़ेगा, दिस वन। सर ये वाला नहीं, ये वाला स्टार्टिंग है। हाँ, तो ये लेना पड़ेगा। चेक सर करते ये हैं। दूसरा प्राइमर लिया आपने। यही लिया था ना फर्स्ट वाला, कि नीचे वाला लिया था? सर ये लेना था, ऊपर वाला AGC वाला। हाँ ना, तो वो खुद को करेक्ट हाँ। करता है। देखिए यहाँ पे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, खुद को करेक्ट कर रहा है वो। हाँ, ये ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। अब हमको मिलना चाहिए 171306 से लेके 305 के बीच का सीक्वेंस। मिला कि नहीं मिला? यहाँ तो कुछ और आ रहा है। नॉर्मल ब्लास्ट हो गया क्या ये? ब्लास्ट तो करेक्ट है। नाइन सेवन टू जीरो से 9739 तक मैच किया उसने, ऐसा वो डिवीजन दिखा रहा है। ये दिखा क्या? ये दिखा?
समझा क्या? कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? 471 471 समझ रहे हैं ना? 471 यानी हमारा जो 16s RNA कहां से शुरू होने वाला है? कहां से शुरू होने? 5171 506। अब हमको कहां पे मिला एम्प्लीकॉन? 471 471 यानी 441 506 माइनस 441 यानी 35 न्यूक्लियोटाइड आगे से एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाएगा। समझा क्या आपको? हाँ सर। तो आपके 1535 प्लस 35 यानी 1570 न्यूक्लियोटाइड्स। समझा क्या आपको? 1535 तो उसके नॉर्मल है, प्लस ये 35 न्यूक्लियोटाइड उसमें ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1570। और इधर कितने दूर तक गया है वो? कितने दूर तक गया? 173237 173 237। 173 218 तक गया था ना? हाँ सर, 218 से 237 तक है। हाँ, अब हमारा खत्म कहाँ होने वाला था? 041 पर खत्म होने वाला था, राइट? 218 यस तक सर। गया है, यानी वो 173218 माइनस 173041 नहीं 17321 की जीरो है, मुझे बंद हो गया। 173241 तक था ना? तो कम से कम आपका जो एम्प्लीकॉन मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको 1900 बेस पेयर का, कम से कम 1900 नहीं, 1700 बेस पेयर का मिलेगा आपको। 1700 बेस पेयर का एम्प्लीकॉन मिलेगा। तो उसने देखिए बराबर प्राइमर ने कैलकुलेट भी किया है यहाँ पे, ठीक है? समझ रहा है क्या? 1767 न्यूक्लियोटाइड्स का एम्प्लीकॉन मिलेगा। इसमें से 200 न्यूक्लियोटाइड आपको कम करने पड़ेंगे करीबन, आगे के और पीछे के, और जो बचेगा वो करीबन 1535 का रहेगा, और आपको प्योर 16s RNA सीक्वेंस रहेगा। करेक्ट है? आपको समझा सबको? पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई डाउट है क्या? बताइए। ये समझ रहे हैं ना 1700 कहाँ कहाँ का आ गया? यस पहले सर। पहले वाला कुछ पार्ट आएगा और 8 वाला कुछ पार्ट आएगा, वो आपको ट्रिम कर देना पड़ेगा, बाद में काट देना पड़ेगा। और जो प्योर है, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से 1535 तक, वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इस बंदे को आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा प्राइमर है जो अच्छा बाइंड कर सकता है। कौन सा प्राइमर देंगे? ये वाला दूंगा या ये वाला दूंगा? ये करेक्ट है क्या? नो सर। कौन सा देंगे? सर 1767 वाला। यस, ये वाला देंगे। ये सीक्वेंस है सर, इससे आप आराम से टारगेट कर सकते। समझ रहे हैं? प्राइमरी डिजाइनिंग समझा आपको? 16 RNA आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, प्राइमरी डिजाइनिंग उसका कैसे करते हैं, समझा क्या? हाँ या ना? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप रिसर्च लेवल पे जाएंगे ना, अगर आपको ये आता है तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिसर्च में बढ़ जाएगी, ठीक है? ये लॉजिक अपने दिमाग में भर के रखिएगा, कभी इसको भूलिएगा मत। ये टेक्निक बहुत काम की टेक्निक है, ठीक है? चलिए, so we'll stop here and we'll meet tomorrow. कोई डाउट है क्या? पूछ लीजिए।